अन्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। भगवद गीता के इस उपदेश को श्री एस.के. रॉय ने पूर्णतः अपने जीवन में अनुसरण किया और देश की महारत्न कंपनी एनटीपीसी को अपनी कर्म भूमि बनाया, क्योंकि टैलेंट को समझना, स्वीकार करना संसार का नियम है और ऐसे ही लोग अपनी एक नई छाप छोड़ते हैं, इतिहास बनाते हैं और आने वाली नई पीढ़ी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करती है। Today we are here to felicitate Sri S.K. Rai, Director Project. I got introduced to him when he was HOP Korba. I found he is having very unique skill and he is able to work competently in both the sides of the project management and the O&M. He is a person who is working very hard. He is a team member. He is a team leader and provide unique direction to his team, which is demonstrated that NTPC today is 57,000 megawatt plus. I welcome him and give him best wishes from my side and wish him all the best for himself, for his family and for the entire team. यह वाक्य श्री एस.के. रॉय को समर्पित है। श्री एस.के. रॉय, जिनके टैलेंट को देश की महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने बखूबी समझा, स्वीकार किया और 38 वर्षों तक आपकी सेवाएं हासिल की। Whatever today NTPC is, it is because of people like Rai Sahab. In the last 2 years as Director Projects of NTPC, he has contributed to the growth of NTPC and we have achieved several benchmarks including COD of more than 5,700 megawatt. Rai Sahab has taken keen interest in revival of BOD project stage 1, which is long delayed due to various reasons, and it gives immense satisfaction that now Unit 1 steam blowing has started and I am confident we will be able to achieve commissioning of Unit 1 within March, which will be a tribute to Rai Sahab's dedication. Sir, I take this opportunity to wish you all the very best in your next phase of life. एनटीपीसी लिमिटेड के साथ श्री एस.के. रॉय की एक लंबी यात्रा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में दिसंबर 1981 से शुरू हुई और 1 वर्ष तक पेट्स बदरपुर और ट्रॉम्बे थर्मल पावर स्टेशन में ट्रेनिंग प्राप्त की। I am very fortunate to have worked with S.K. Roy Sahab. I am thankful to him that he gave me an opportunity to work with him. I learnt a lot of things from him. I also found how he attacked the problems and how he solved the problems. It is because of his dedication, it is because of the strategy which he adopted, because of which Solapur, Meza, Nabinagar, Tanda, Khargone, all these projects came very, very satisfactorily. And we are about to commission Dallipalli also. We are very hopeful that we would be completing commissioning of Lara and Gadabara by January next year. He is a very dedicated person, rather he is a workaholic. I wish all the best in his second innings of his life. ट्रेनिंग के बाद श्री एस.के. रॉय को कंपनी के द्वारा कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में नियुक्त किया गया। यहाँ आपने दिसंबर 1982 से अप्रैल 1992 तक अपनी सेवा दी। He has been also helping the various projects onto the critical issues of various projects like ash handling, coal handling, railway siding and so on and so forth. I like Roy Saab, his softness, his calmness and his nice expression that whenever we meet him, it's a different feeling altogether meeting Director Projects personally and the kind of advices that he gives. I am confident that in his future endeavors he will be again successful. I on behalf of Eastern Region 2 and projects and stations wish Roy Saab
a happy and prosperous future. श्री एस के रॉय ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत शिफ्ट में डेस्क ऑपरेटिंग इंजीनियर के रूप में की थी। बाद में सीनियर इंजीनियर, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट का चार्ज भी संभाला। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में 200 मेगावाट की कमिश्निंग के दौरान आपने प्लांट में कमिश्निंग की प्रक्रियाओं की भी देखभाल की। यहाँ आपने अपने काम के प्रति दृढ़ता और अनुभव का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। S.K. Roy, better known to me as Sushanta, was my classmate. I know him for the last 44 years. We both joined NIT Durgapur for BTech Mechanical in the year 1975, and we graduated in 1980. He's someone who is a delight to talk to. After he joined NTPC in 1981, we never had time to work together. He was always moving from site to site. He started from Korba, then he moved to Sipat, then he went to Vindhyachal. So although we never had opportunity to work from one place, we always had close interaction in all official matters, and we extended all kinds of help in a big or small way, whatever way we could. Finally, I will like to wish Mr. Roy and his family good health, wealth, peace and prosperity. I am confident he will be successful in any field that he chooses to venture into. I wish him great success. श्री एस के रॉय के अनुभव को देखते हुए आपकी पोस्टिंग मई 1992 में फिरोज कांदी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट के टरबाइन जनरेटर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में पहले सुपरिंटेंडेंट, फिर सीनियर सुपरिंटेंडेंट और हेड के रूप में की गई। जब आपने यहाँ का पदभार ग्रहण किया तो उस समय टरबाइन जनरेटर में कई प्रॉब्लम्स थीं और कई चीजें कमीशन नहीं होने के कारण PLF केवल 13% था। आपकी कार्यकुशलता के कारण केवल 6 महीने में PLF 75% हो गया। उन्होंने इंजीनियरिंग क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्शन के डिपार्टमेंट को लेने के बाद हमारे साथ बहुत सहयोग किया और अपने जो लंबे NTPC में जो करियर में ऑपरेशन, मेंटेनेंस, उसके अलावा प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन के जितने एक्सपीरियंस दे उसको लेते हुए इंजीनियरिंग के डिसीजन को जल्दी करने में और सही करने में हमारे हमेशा साथ दिया और उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान होने के साथ खुलेआम डिस्कस करते थे और डिसीजन लेने में सबको प्रोत्साहित करते थे। SK राय के सुपरएन्युएशन के इस टाइम पे इंजीनियरिंग क्वालिटी और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से मैं उनको बेस्ट विशेस देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो अच्छे हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी में रहे और NTPC के साथ आगे भी जुड़े रहे जिससे NTPC को फायदा मिले। फिरोज कांदी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट में आपने अपनी सेवा मई 1992 से जनवरी 2002 तक प्रदान की। इस दौरान आपके अनुभव, सोच समझकर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को वहां काम करने वाले आपके सहयोगी और कर्मचारी आज भी याद करते हैं। Sri S.K. Roy and ourselves, we started together working way back in 1982 from Korba Super Thermal Power Project. He was extremely hardworking. He was very much got associated with the KW engineers and specialists, and he learned ins and outs of the governing system, and he was recognized as a very special governing engineer system for the KW turbine. And we have also learned from, because I am an electrical, I am not a mechanical, so I have learned from him this governing system. He was extremely hardworking, day and night he was worked for the governing system and turbine maintenance and etc. I worked together for around 9 to 10 years in Korba. Later on I came down to Dadri, he was there in Korba, and later on he went to other stations like Vindhyachal etc. I wish him all the best for his new and phase of life. I would remember him for his clarity, his decision making and his personal touch. He was a very prompt decision maker, and he used to get a grip of the problem, the whole issues. He used to understand and take a call very shortly. And he has been a real driver for NTPC. Unfortunately, we have to let him go. That is how it is. So finally, I wish him all the best for him as well as his families in this retired life. मैंने करीब 1 वर्ष से ज़्यादा सर के साथ काम किया है और वो मेरे लिए एक अपने आप में बिल्कुल नया अनुभव था। सर की कार्यक्षमता अभूतपूर्व है।
सर जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से निर्देश देते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। भगवान में पूर्ण आस्था है सर की और भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं। मैं यह भी शुभकामना करता हूं कि आने वाले समय में उनके जीवन में अपार खुशियां और सफलताएं आएँ और आप सम्मान और समृद्धि के साथ आगे के जीवन पथ पर अग्रसर हों। कम समय में ही महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड में अब श्री एस के रॉय की गणना अपने काम के प्रति सजग, आने वाली समस्याओं का सटीक आकलन और समस्याओं का मुकाबला करने वाले योग्य अधिकारी के रूप में होने लगी। और इस कारण आपकी पोस्टिंग फरवरी 2002 से दिसंबर 2006 तक रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में डेप्यूटी जनरल मैनेजर मैकेनिकल एंड मेंटेनेंस के रूप में हुई। आपको 2x500 मेगावाट स्टेज 2 की कमीशनिंग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई। आपके अनुभवों के कारण रिहंद स्टेज 2 का 500 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट तय समय पर पूरे किए जा सके। He discussed the situation and he understood quickly, and he was instrumental in getting the board approvals of financial assistance, and thereafter the work sprung up. Again we did face some financial crunch, for which I reverted back to him, and again he went through the entire situation, and we had worked out some financial statement and all, and he reviewed it very thoroughly and gave certain inputs also, and with those inputs we have got certain approvals, and again the works have started at site. So overall I had a very, very enriching and fruitful interaction with our director project, and I found that he is an honest, upright and a very demanding person. At the same time he handles the situation very hard. At the same time, for manpower, he is very soft. He knows that when you are to direct and how you are to keep your subordinate so that he delivers. But nevertheless, I enjoyed the entire autonomy given to me by him, and only thing he demanded was that after this, what would be the result, which indeed I feel that I rose to the occasion and I have delivered. With this, I wish him all the best for the next innings. श्री एस के रॉय का अगला पड़ाव था एनटीपीसी का सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ आपकी नियुक्ति एडिशनल जनरल मैनेजर मेंटेनेंस के रूप में हुई। यहाँ आपको 2000 मेगावाट 5x200 मेगावाट और 2x500 मेगावाट का कंप्लीट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल मेंटेनेंस का काम सौंपा गया। यहाँ भी आपने अपने अनुभवों का भरपूर परिचय दिया। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन चूंकि उस समय 27 वर्ष पुराना एनटीपीसी का प्लांट था, इस कारण बॉयलर, टरबाइन जनरेटर, पंप्स, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स और कंट्रोल सिस्टम्स को अपग्रेड करने की जरूरत थी। श्री एस के रॉय ने इस जरूरत को समझा और 1.5 वर्ष के अंदर, मतलब जितने दिनों तक आप वहां रहे, सभी 7 यूनिट्स में मॉडर्नाइजेशन और रेनोवेशन का काम बड़े पैमाने पर किया। इस कार्य के बल पर ही प्लांट का परफॉर्मेंस, जो वर्ष 2006-2007 में 84% PLF तक था, वो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 91.64% हो गया। इसके अलावा बॉयलर ट्यूब लीकेजेस को भी ठीक किया गया। श्री एस के रॉय की देखरेख में प्लांट का सिविल और ऐश डाइक मेंटेनेंस प्रभावी ढंग से पूरा हुआ। इसके लिए 120 इंजीनियर्स और 400 नॉन एग्जीक्यूटिव्स को काम पर लगाया गया था। श्री एस के रॉय सिंगरौली प्रोजेक्ट में जनवरी 2007 से जनवरी 2008 तक रहे। आप एक बहुत ही कुशल नेतृत्व दिया है आपने। आप एक बहुत ही अच्छे इंडिविजुअल, बहुत अच्छे इंसान हैं, जो व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों को बहुत सहारा दिया है। मैं आपको और आपके संपूर्ण परिवार को आगे सुखमय भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। श्री एस के रॉय कोरबा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट स्टेशन में एक बार फिर नियुक्त किए गए। इस बार आपने एडिशनल जनरल मैनेजर O&M हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभाली।
इस दौरान प्लांट के हर डिपार्टमेंट का निरीक्षण, सहयोगियों से सलाह मशविरा, इस कारण प्लांट का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो गया। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने वर्ष 2008-9 में एनटीपीसी के सभी पावर स्टेशंस के पीएलएफ में चौथा रैंक प्राप्त किया और पूरे भारत में 8वां रैंक हासिल किया और 2008-9 में ही एनटीपीसी का बेस्ट पावर प्लांट रोलिंग ट्रॉफी से भी अलंकृत किया गया। सर, आपका जो ब्रिलियंस एंड गाइडेंस हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड अस एंड फॉर मोर एंड मोर कंट्रीब्यूशन फॉर एनटीपीसी। सर, आपका इंस्पायरिंग लीडरशिप और गाइडेंस के चलते सर आपने सिर्फ नया नया आइडिया लेके आए जो हमारा मोस्ट ऑफ द एजेंसीज गॉट स्टक अप बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, उससे निकालने के लिए बोर्ड में जाके जो जो प्रपोजल अप्रूव कराया वो एनटीपीसी का हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चीज़ है। आपका जो फियरलेस एंड जो बोल्ड नेचर है, जो आपका बाहर से जो दिखता है बहुत सॉफ्ट, उतना ही बोल्ड आप है in case of decision making. After your so-called retirement from NTPC, you will not keep quiet and you will remain active the way you are today. And मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसे ही काम करते रहेंगे and I wish that आपको एवं आपको परिवार को एक happy, healthy and peaceful life. मई 2009 में श्री एस के रॉय की पदोन्नति हुई, जनरल मैनेजर नियुक्त किए गए और 2100 मेगावाट के हेड ऑफ एंटायर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के अलावा 500 मेगावाट की कमिश्निंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। आपने एकाग्रता के साथ 385 इंजीनियर्स और 900 नॉन एग्जीक्यूटिव्स का सफल नेतृत्व कर इस काम को पूरा किया। इस दौरान O&M परफॉर्मेंस ने वर्ष 2009-10 में पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पार कर दिया। सर्वाधिक पीएलएफ दर्ज की गई। वर्ष 2009-10 में प्लांट की स्थापना से लेकर उस समय तक का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके अलावा यहाँ बरसात में ऐश डाइक पूरी तरह पानी में डूब गया। आपने अपने अनुभव और कार्यकुशलता का सबूत देते हुए ऐश डाइक बटरेसिंग के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। ये टेक्नोलॉजी सफल हुई और एनटीपीसी के सभी पावर स्टेशंस में इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया और वर्ष 2009-10 में एनटीपीसी के सभी पावर स्टेशंस में कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की रैंकिंग पीएलएफ में टॉप पर रही और देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। Your leadership is truly inspirational for many of us as it was with a concrete direction to confront the issues with basic, simple, yet the powerful approaches. Being at the helm of affair, you have taken many of the courageous and decisive actions to take most of the NTPC projects, running projects out of the turmoils. We will always remember your immense and invaluable contribution to this organization. I, with my family, pray Lord Jagannath to bless you and your family with lot of happiness, peace and prosperity in times to come. वर्ष 2010 के बाद श्री एस के रॉय 2600 मेगावाट एनटीपीसी लिमिटेड कोरबा में बिजनेस यूनिट हेड के रूप में नियुक्त हुए और कई बड़ी जिम्मेदारी दी गईं। पूरे पावर स्टेशन की देखभाल जिसमें जनरेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, CSR, ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल्स, टाउनशिप, हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, लाइजनिंग शामिल था। इसके अलावा हेड ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंतर्गत हेड ऑफ प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल्स, हेड ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हेड ऑफ क्वालिटी, हेड ऑफ टाउनशिप इत्यादि जैसी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। On few occasions I met him when he was EDOS for contract closing and R&M purpose. Then when he came in PP&M department, our frequency of interactions has increased. I found sir very simple, very down to earth.
a leader who leads from the front. Under his guidance, I have learned many things, and he has taken some very bold decisions like GST payments and gap funding to the agencies for progress of the project. Under his guidance, this year we are going to achieve all-time high capacity addition and commercial capacity addition. I wish him all the very best for his second year. भारत के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट 4760 मेगावाट के NTPC विंध्याचल में भी श्री SK रॉय ने वर्ष 2013 के बाद अपनी सेवाएं बिजनेस यूनिट हेड के रूप में प्रदान की। यहाँ भी आपने अपने अनुभवों और क्षमताओं के बल पर लगभग 1600 कर्मचारियों के साथ काम करते हुए थर्मल पावर प्लांट NTPC विंध्याचल को शिखर तक पहुंचाने का काम किया। आपके नेतृत्व में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन के यूनिट नंबर 13 से 39 महीने के रिकॉर्ड समय में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ। NTPC विंध्याचल को वॉर्सो पोलैंड में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एक्सीलेंस अवार्ड से अलंकृत किया गया। यूनिट ने CERC नॉर्म के अंतर्गत पूरे टैरिफ ड्यूरेशन में 5% अतिरिक्त ROE को प्राप्त किया। मतलब ये कि श्री SK रॉय ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन सर्विसेज के तौर पर काम करते हुए कॉर्पोरेट फंक्शंस में बड़ी तब्दीली की। NTPC के सभी पावर प्लांट में सस्टेनेबल जनरेशन की कई न्यू इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया और अंत में भारत सरकार ने आपकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता को स्वीकार करते हुए भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी, जिसे आपने अपने खून पसीने से सींचा था, डायरेक्टर प्रोजेक्ट नियुक्त किया। आपने कम समय में ही 500 मेगावाट की बढ़ोतरी की और ये भी महत्वपूर्ण है कि आपके ग्रीन फील्ड में क्षमता विकास के लिए कई कार्य किए। इनमें प्रोजेक्ट के बाहर आउटसाइड बाउंड्री वॉल, रेलवे साइडिंग, मेकअप वाटर और ट्रांसमिशन लाइन शामिल हैं। आपने कुछ पुराने बंद पड़े प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। SK Roy sir, basically very much task-oriented person. He was a great leader, great teacher and mentor also. I have learnt a lot from him. इन्होंने बेसिकली स्टेज 5 विंध्याचल जो 0.5% ROE रिसीव किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिम ओनली। ही इज वेरी मच टास्क ओरिएंटेड। बेसिकली ही एज बेसिकली जो काम करना है उनके हिसाब से तो काम करना है। चाहे वो विंध्याचल में तो उन्होंने इतना काम किया है जो कि आज तक विंध्याचल उनके लिए आभारी रहेगा। बेसिकली स्टेज 4 का यूनिट 12 कूलिंग टावर बिकॉज ऑफ हिम दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल। सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उनके जो है काम करने का जो स्टाइल था, उनके मैसेजेज आते रहते थे। हम लोग आश्चर्य करते थे कि साहब दिन भर काम करने के बाद भी कि इतना एक्टिव रहते हैं कैसे। श्री SK रॉय ने अपने जीवन के बहुमूल्य 38 वर्ष तक NTPC की सेवा की। इस दौरान आपने एक के बाद एक अलग अलग पोस्ट ग्रहण किए, अलग अलग स्टेशंस पर रहे, नए सहयोगी मिलते रहे, कई लोगों के साथ काम किया। उन लोगों का श्री SK रॉय के बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। I had the great privilege to start my professional career under the guidance of Shri SK Roy sir. I joined in turbine maintenance department at Uchahar after completing my training and have worked very closely with him. He has been my guru and mentor throughout my professional career in NTPC, and I have been fortunate enough to receive his valuable guidance and support always. You and your family a very healthy, happy and peaceful life ahead. आप जैसे कर्मठ ईमानदार व्यक्ति के अंदर काम करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। और हो सकता है कई जगह पे हम लोग आपके इच्छा अनुसार या आपके टारगेट के अनुसार कार्य नहीं कर पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बट आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हम लोग आपके दिखाए हुए राह पे चलेंगे और ऐसा ही मेहनत करेंगे। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप
रिटायरमेंट के बाद जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ऐसे ही ऊर्जावान रहें। Sir, we have learnt a lot under your dynamic leadership. As you start your second innings, I wish from the core of my heart a very happy and prosperous active life ahead. This is the first project which has come along with the railway siding, and there is a lot of contribution of our director project, but there are a lot of other problems, like there was a problem in availability of resin, but somehow our director project has helped us to bring that resin from the Lara project, and ultimately the project has come within time, and I wish our director project all the best for their future, and I wish his family as well as children. एनटीपीसी परिवार के अलावा श्री एस.के. रॉय का एक और परिवार है। उस परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे हैं। श्रीमती राय अपने पति के बारे में क्या कहती हैं, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। शुरू में ऊंचाहार में टीएमडी में थे, उसके बाद कमीशनिंग में भी उन्होंने काम किया है। उस समय उनका जिंदगी बहुत टफ हो गया था। कभी कभी घर में 2 दिन 3 दिन लगातार नहीं आ पाते थे काम के वजह से। घर में भी दोनों बच्चों के लेके मुझे बहुत तकलीफ होता था। फिर रिहांद में थोड़ा ठीक ठाक गया, उसके बाद शक्तिनगर में आके फिर कई तरह प्रॉब्लम झेलना पड़ा था उनको ऑफिस के लिए। लेकिन कभी भी उनको मैं उसके लिए कभी दुखी नहीं देखी हूँ। वो हमेशा चाहे जितना भी ऑफिस में काम रहे प्रोजेक्ट में, वो हमेशा अच्छा से ही खुशी मने करने की कोशिश करते थे। फिर शक्तिनगर से हम लोग कोरबा गए, कोरबा में भी इसी तरह ही 5 साल देखते देखते कट गया। उसके बाद कोरबा से बिंदानगर ट्रांसफ़र हुआ हमारा 2013 में। बिंदानगर हम लोग आए, फिर बिंदानगर में नया यूनिट इन्होंने लाए हैं, वो तो अच्छे से ही सब टाइम पे हुआ था। उसके बाद 2016 में हमारा ट्रांसफ़र हुआ नोएडा ईओसी में। फिर 2018 में इन्होंने एज ए डायरेक्टर प्रोजेक्ट स्कोप में ज्वाइन किया। ऐसे ही पूरा उनका कर्म जीवन चलते रहा। कभी कभी टफ भी गया है, लेकिन जैसे भी गया है इन्होंने हमेशा हंस हंस के उसका सॉल्व करने का कोशिश किया। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने भी मेरा मिस्टर के साथ काम किया है। उनमें से कई लोग मेरा घर में भी कभी कभी काफ़ी सहयोगिता किया है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे किसी का हेल्थ प्रॉब्लम हो या जो भी हो, काफ़ी लोग सहयोगिता भी किया है। मैं उन सबका आभारी हूँ। ईश्वर से मैं दुआ करूँगी आप सभी खुश रहें, कुशल रहे आप सबका जिंदगी। श्री एस.के. रॉय बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हमेशा चुनौतियों का सामना किया। आपके जीवन का केवल और केवल एक ही मंत्र रहा, कर्म और केवल कर्म। उनकी सेवा, उनके कार्य उपलब्धियों की वो दास्तान है जिसे एनटीपीसी में हमेशा संजो कर रखा जाएगा। एनटीपीसी परिवार में काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन करेगा और एनटीपीसी को और अधिक शक्तिशाली बनाने की दिशा तय करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। धन कहता है मुझे जमा कर, समय कहता है मुझे प्लान कर, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, भगवान कहते हैं कर्म कर, मुझ पर विश्वास कर। कौन कहता है हम ओल्ड हो गए, हम तो तब कर गोल्ड हो गए। Thank you and best wishes, Shri S.K. Roy Sir.